Kौन? Yang asal ada hari yang nanti Jamie kursi. एक ऐप से उस ऐप्स के थ्रू इस सर्वर से डेटा लेते हैं, तो इसको आप तो क्लाउड सिंक करते हैं वापस आके, तो हमारे डैशबोर्ड में कर सकते हैं। यस सर, स्कूल वाइज स्टूडेंट वाइज सब्जेक्ट वो हम ये ईयरली हम डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं, डिपार्टमेंट एजुकेशन आगे कुछ करते हैं इसका। जी सर, एमसीएस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, नेशनल करियर सर्विस। जी सर। हाँ जी बताए। ये आंगनवाड़ी वर्करों ने बनाया मैम, लोकली अवेलेबल फूड, यस सर, न्यूट्रिशन अवेलेबल इन एंड न्यूट्रिशियस, सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि आंगनवाड़ी में एडोल्सेंट गर्ल्स। हमारे जो ग्रुप की टीम ने हमारे जो ग्रुप का जो जो छापते जो प्रेग्नेंट आने सांस के संतान हार्टिंग नर्सरी पेस्ट सर। हाँ कोई नहीं ले Aló, Nargis. ये अल्ट्रासोनिक है, ये हाई फ्रिक्वेंसी। थोड़ा बताओगे कुछ? ना काफी है। Shri Testimonial Continuing Examination, University of Ladakh, Shri Sayyid Jamal, Social Welfare Officer from different sectors and explore what are the best education trends for you.
हमारे अतिथियों की उपलब्धियों की सूची खत्म नहीं हो सकती। वास्तव में फरजाना। एक बार पुनः तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत। एक बार पुनः तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत। Consultation gave among youth on subject choice, career guidance, seeking opportunities, scholarships, and education loans, etc. Taking for those is revision or respect matters. जाने कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं इस जिंदगी में जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। नाउ ग्रेजुएट है, तो जब वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे एक एक्सपोजर मिला कि सिविल सर्विसेज भी एक ऑप्शन है। तो ये मैं मतलब जैसे आज की एजुकेशन लद्दाख एजुकेशन फेयर का एक ऑब्जेक्टिव है कि अलग अलग फील्ड से आपसे एक्सपर्ट इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में भी बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, और पिछले मतलब 2.5 साल से मैं यहाँ पे हूँ, लेह में पहले डीसी था, तो मैंने देखा है कि बच्चों में यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेह में नहीं और कारगिल में तो कमी है ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में guiding the students in their career, they are giving good education, and that's why this is one of the popular college of Ladakh. And University of Ladakh is really proud of its all colleges, but particularly Kargil College, because it is showing always the good results and good progress in education is happening. Really, it gives me immense pleasure to be part of this Ladakh Education Fair. This is the second in a row. Last year also it was organized. This year again we are organizing this in all the colleges of Ladakh. And I can see that lot of efforts have been put by principal and our team along with our dear students, and they have done a great job in creating so many demos and models, and along with various types of stalls are there by the industry, by other organizations, even Agniveer and so on. So it's really commendable that students will be exposed to so many things. Department of Higher Education, as she's the one who came up with the idea and launched Ladakh Education Fair for the first time in the history of English literature, that is August 2022. Thank you, ma'am, for providing such a student-centric platform. Professor S.K. Mehta, Honorable Vice Chancellor, University of Ladakh, Mr. Shrikant Balasaheb Sose, Indian Administrative Services, Deputy Commissioner Kargil, Mr. S.D. Sudarshan, Executive Director, Center for Development of Advanced Computing. Thanks to all of you for ornamenting this occasion with your gracious presence. All the distinguished guests, principals, staff and students of various other schools, thank you for accepting our invitation and gracing the occasion. I am indebted to Dr. Amina Kari, Principal Government Degree College, Kargil, and have to acknowledge institution contribution for their encouragement and support.
Finally, thanks to the pillars of पे इनवाइट किया गया है कॉलेज फेयर में, तो हम यहाँ पे अपना जो भी हमारे ब्यूटिशियन स्किल ट्रेनिंग सेंटर में यूज़ होता है, जो मतलब एक पार्लर में यूज़ होना चाहिए, मशीन्स अल्ट्रासोनिक है, हाई फ्रिक्वेंसी है, और फेशियल्स के यहाँ पे बहुत सारे किट्स हैं, मेकअप्स भी है, तो फेशियल्स किट्स है, और यहाँ पे थ्रेडिंग भी होता है। हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी है यहाँ, जहाँ पे हम ब्यूटी के बारे में अच्छे से सीख सकते हैं। जी, ये कितने महीने के कोर्सेज होते हैं जो आप ऑफ़र कर रहे हो इस वक्त? जी, ये है 3 महीने का कोर्स है। 15 जून से स्टार्ट हुआ था, अभी लगभग 1.5 महीना हो गया है। तो बस अभी यहाँ पे आज हमने वो लोग अपना बिज़नेस खोल सकते हैं सर, ब्राइट फ्यूचर होगा, क्योंकि इसमें हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर घर जाके सर्विस दे सकते हैं, अपना खुद का पार्लर खोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट बनेगा सर एक तरीके से ना। जाकिर सर, हम देख रहे हैं कि 17 फीट फाउंडेशन जो है ख़ासतौर पे लद्दाख के अंदर एजुकेशन सेक्टर में जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आज हमने देखा कि यहाँ पे जो एजुकेशन फेयर चल रहा है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पे रही है, तो क्या कुछ ख़ास आप स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ पे लेके आए हो? जी, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने पहले बताया कि 17,000 फीट फाउंडेशन लद्दाख में काम करते हैं, तो हम पूरे लद्दाख को अभी हमारा काम एक्सटेंड हो गया सिक्किम में भी। आपको बताता चलो, हम कोशिश करेंगे पूरे हिमालयन रीजन में हम हिमालयन रीजन को कवर करें। तो अभी हम फिलहाल ही लद्दाख और सिक्किम में हम काम कर रहे हैं। तो आज जो ये लद्दाख एजुकेशन फेयर है, हम इसमें शोकेस करना चाहते थे अपने काम को कि हम स्कूलों में क्या क्या कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ, तो हमने यहाँ पे अपना वो डीजी लैब का सेटअप किया है, शोकेस में दे सकते हो, जो डीजी लैब हमने स्कूल में सेटअप किया है। उसका मेन मकसद ये है कि अभी जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे बच्चे आशना हो, और बच्चे बुक के साथ टैबलेट या डिजिटल डिवाइस से भी पढ़े, क्योंकि ऑडियो विजुअल लर्निंग ज़्यादा जरूरी है, आपको पता है, बच्चों को ताकि ज़्यादा समझ आए। साथ ही साथ हमने यहाँ पे अपने लाइब्रेरी का भी शोकेस किया, जिसमें डिफरेंट लेवल के बुक्स हैं, वो बच्चों के लेवल के हिसाब से। आपको बताता है कि हम स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों को फोकस में लेके हमने ये सेटअप किया। उसके अलावा हम यहाँ पे वो एलेक्सा डिवाइस भी सेटअप किया, जो अमेजोन ने स्पॉन्सर किया है, जिसका मकसद ये है कि बच्चे वो ऑनलाइन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस है, AI डिवाइस है, वहाँ बच्चे अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो शोकेस किया, आप देख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने प्लेग्राउंड सेटअप किया, तो हमने पूरे सिक्किम और लद्दाख में 225 प्लेग्राउंड सेटअप किया है, जिससे हमारा इन्रोलमेंट और अटेंडेंस 20% इंक्रीज हुआ। उसके अलावा एलेक्सा हमने 150 स्कूल में सेटअप किया है। उसके अलावा डिजिटल 270 स्कूल में हमने डिजिटल सेटअप किया है, और 170 स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने फर्नीचर दिया। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे हमने 330 स्कूल में हमने लाइब्रेरी सेट किया। ये इसका मकसद ये है कि लाइब्रेरी कल्चर जो है वो बच्चों में रीडिंग हैबिट बढ़े। उसके अलावा हमने 150 आंगनवाड़ी सेंटर्स में उन्हें लर्निंग। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल की तरफ से हमारा जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस है, हम उनके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे, क्योंकि ये हमारे लोकल जो हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं, या कि पुराने ज़माने के जो भी डिज़ाइंस होते हैं, वही उनको हमने हैंड प्रिंट किया स्टूडेंट्स ने। तो इनमें से कुछ है हमारा सुरु डिज़ाइन, जो कि सुरु वैली से इंस्पायर होकर बना है, और टंका, जो कि हमारे एक ट्रेडिशनल डिज़ाइंस होते हैं, जिसको ज़्यादातर हम ड्रेसेस पे और भी सारे मतलब डेकोरेशन चीज़ पे भी हम उसको यूज़ करते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे एक है ज्ञानी डिज़ाइन, जो कि शीना टाइप का जो भी ड्रेस होता है ना, वहाँ उस पर सैटिन स्टिच से एक एम्ब्रॉयडर्ड किया होता है, तो वो हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है। और तिकमा, जो कि हमारे सुलमा ड्रेस पे होते हैं, जिसको डाई करके हम बनाते हैं डिज़ाइंस, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सारे डिज़ाइंस कुछ नए और भी चीज़ों पे, जैसे हैंड पेंट तो हमने किया है, साथ साथ हमने इनको और भी ड्रेसेस पे हमने एम्ब्रॉयडरी भी किया है और डाई भी कर रहे हैं, और बस यही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में ओवरऑल कितने किस्म के डिज़ाइंस यहाँ पे पाए जाते हैं? जी सर, वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, बट हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तो यंगस्टर को भी पुराने ज़माने डिज़ाइंस के बारे में पता नहीं चलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को, जो हमारे स्किल सेंटर के स्टूडेंट हैं, उनको हम एक प्रोजेक्ट देते हैं, जिससे कि हमारे जो पुराने जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकें और उनके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर सकें। तो वो बहुत अच्छा, स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ पे? ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं जिस तरह से जो यहाँ का जो लोकल डिज़ाइन है वो पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस एग्जीबिशन में, तो स्टूडेंट कितना इसमें रुचि दिखा रहे हैं?
जी सर, स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा शौक़ से काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना लड़कियाँ ज़्यादातर, लड़के भी होते हैं पर लड़के ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं क्योंकि इसमें हैंड एम्ब्रॉयडर्ड का काम होता है, हैंड पेंटेड का काम होता है और उन पे हम ज़्यादा अपना ट्रेडिशनल डिज़ाइन भी दिखा रहे हैं। तो लड़कियाँ बहुत शौक़ से कर रही हैं और कुछ लड़कियाँ ऐसे हैं कि जो मैं अब ये ZTV का है, तो चलेगा। मैम क्या कहना चाहेंगी, ये जो खास तरह का ये एग्जीबिशन यहाँ पे देखा जा रहा है, दो दिनों तक यहाँ पे चलाया जाएगा और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लोकल जो खाने हैं ख़ासतौर पे लद्दाख में यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी एक नुमाइश हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या क्या चीज़ें आज आपने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा है और लोग किस तरह से इन चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोग यहाँ आके हमारे यहाँ फूड स्टॉल का आप लोगों ने इनोवेशन किया। पहले मैं बताती हूँ कि ये हमारा लोकल फूड जो है जो आजकल फिर से उरूज पे आ रहा है क्योंकि हम इस सेंटरों में प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ छपसे हाँ जो हमारे संस्कृति की जगह पे आता है वो आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम खिलाते हैं छपसे, और ये पोपो नर्सिंग मदर को भी हम ये खिलाते हैं। और अभी जो हमने आज ये बनाया एब्रिकॉट और ये गिरी का पेस्ट, वो भी हम हलवा, खीर और ज़ैतून और ये खुबानी का क्या सबखुर खुबानी का मारखुर जो आज हमने नया बनाया है, और ये मारखुर तो आम हमारे घरों में मिलता है। और ये पालक का ये पराठा भी हमने बनाया है। जो ज़ैतून तो हमारे यहाँ पे आम मिलते हैं। ख़ासकर चुकंदर का जो जूस है वो एडोलसन गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और वहाँ एब्रिकॉट और गिरी का जूस भी है, वो भी एडोलसन गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारे प्रेग्नेंट्स और नर्सिंग मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है वो हमने यहाँ पे आज स्टॉल में लगाया है। तो लोगों को इस स्टॉल से कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? अभी तो देखते हैं, अभी तो पता नहीं है। अब आजकल हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं कि हमारे लोकल फूड में क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी धीरे धीरे हमारे ये डेवलप हो रहा है हमारे लोकल फूड पे। पहले तो हम ज़्यादातर जंक फूड पे ये ज़्यादा डिपेंड रहते थे। अभी जो आजकल अल्लाह के फजल से हमारे लोकल फूड पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। थैंक यू, शुक्रिया। स्ट्रिंगमो का सर, हमारा जो टीम स्ट्रिंगमो है वो सिस्टर, इसका मीनिंग सिस्टर है सर पुर्गी एंड लद्दाखी लैंग्वेज में। हमारा जो टीम स्ट्रिंगमो है वो 2019 में फाउंड किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर सज्जाद हुसैन बॉब सर। पैंडेमिक के टाइम पे सर हमारी जो टीम लीडर का नाम है मिस कनीस फातिमा है सर। हमने पिछले साल हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट किए थे सर वेरियस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में सर। जिसके बाद इस साल हमें सबसे पहले हमें एसएसपी सर की तरफ से हमें स्कूलों पे जो मुराल पेंटिंग्स होते सर वो बनाने का मौका मिला। उसके बाद वो करने के बाद हमें और भी प्रोजेक्ट्स मिले जिसमें हमने मोर देन 50 स्कूल्स में मुराल पेंटिंग्स बनाए सर। इसी तरह हमें और भी प्रोजेक्ट्स मिले और आज हम यहाँ पर हमें फेयर एजुकेशन पे हमें अपने आर्ट को डिस्प्ले करने का मौका मिला सर। हम बहुत ही थैंकफुल है, हमसे जितना बन पाया हमने अपना जो भी काम किया है आज तक तो उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया सर। उसके अलावा हमें बहुत सारे हायर अथॉरिटीज़ एंड डिग्निटरीज़ ने हमें अप्रिशिएट किया सर। यहाँ पर कुछ अप्रिशिएट लेटर्स है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, LG लद्दाख की तरफ से और आर्मी की तरफ से भी है सर। और हमें वेरियस स्कूल ने भी अप्रिशिएट किया सर हमारे काम को। आपके इस ग्रुप में सिर्फ लड़कियां हैं कि लड़के भी आपके इस ग्रुप में शामिल हैं? हाँ सर, हमारे ग्रुप में सिर्फ लड़कियां हैं सर, ताकि हमारी जो कारगिल की लड़कियां हैं वो एम्पावर हो सके, खुद अपने पैर पे खड़ा हो सके और अपने जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सके। इसमें आर्ट के अलावा डिफरेंट जो बहुत सारी लड़कियां जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं सर, उसके बाद एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं सर। और उस जितने भी मतलब लड़कियां हैं वो डिफरेंट आर्ट के अलावा डिफरेंट वैराइटीज़ में भी वो आगे है।